أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مخدوم کیسر صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی گجرانوالہ، اراکین مجلس عاملہ و سابق صدور، حاضرین محفل، السلام علیکم. آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں انتہائی فرض شناس افیسر جناب مخدوم کیسر صاحب موجود ہیں. میں ان کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں میزبانی کرنے کا موقع فراہم کیا. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نے گجرانوالہ کی صنعت کی اہمیت اور اس شہر کی معیشت میں کنٹریبیوشن و دیگر اہم معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ڈاکومنٹری مرتب کی ہے، جس سے ہمارے معزز مہمان کو بہتر اندازہ ہوگا کہ گجرانوالہ کو پاکستان اہم صنعتی شہر کیوں کہا جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بتائیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا اختر علی، میں ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ اور عرصہ 35 ایئر سے میں ٹریول گریڈ سے وابستہ ہوں. السلام علیکم. خورم بھٹی، چیئرمین یونیورسٹی ٹریول ایسوسیشن. السلام علیکم. سجاد کو بعد میں میرا چیئرمین ایسوسیشن گجرانوالہ بائک سے شراب اور نیو سٹی گورنمنٹ موبائل ایسوسیشن چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ٹیچنگ اینڈ پروسیسنگ سروس محمد عثمان.
Chairman of Standing Committee, City Peace and Interfaith Harmony. خالد شاہین سٹیزن ڈرائیور یاسین رومان نیوز کارڈ خالد تنویر ممبر ایگزیکٹو گلوبل ایسوسیشن. عمیر کھوکر سماج انٹرنیشنل ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ. سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نیم بدل بھی ثابت ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محبت اندازی کے مطابق گجرانوالہ کراچی لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی اور خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے. روحانی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کرانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملک کی زیر ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کے نام بلند کیا ہے, جس کی کاوشوں کے مرکز میں آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے, اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ بینکنگ رپورٹ کے مطابق چھٹے نمبر پر آنے کا احساس بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صنعتی ورکس سیرامک پلانٹس ریفیکٹری بریکس پائپس اینڈ فٹنگز sanitary buildings, bathroom accessories, engineering, spare parts of fiber and thermal power plants, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobiles, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, printing knives and soap, textile, carpets, trade mills and rugs, rice, seeds and agri processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, iron ropes, steel furnace, اور کنسٹرکشن کی معیار اور پائیدار مصنوعات کی برآمدات یقینی بنا رہے ہیں. آج
गुजरावाला की छोटी बड़ी सड़कों में तैयार करना मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरअज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदा बंदरें बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बेहतर और भारत का मुबलगा सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को उनकी तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस रिक्रूटमेंट डेस्क, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सवेरा, SCCB, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क शामिल हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये मकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाका अजीज गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके उनकी मैशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की को फरोग़ के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिफाई आरआई नुमाया से करना जरूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इंकलाबी इक़दाम उठाएं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए सिद्दीक़ सादिक़ ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफ़ीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इक़बाल ट्रस्ट अस्पताल, अरबाई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए पहुँचाना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिद अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, लेवल 1 लेवल 2 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधीन कुदरती आफात से मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी रहबूब के हवाले से जिले सेंट्रल जेल के इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह रहबूब के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी रहबूब के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहर में सफ़र करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में आवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीति और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद और हुकूमती ताउन से अमली जमा पहनाने का अज़्म किए हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राइकोड, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दामात सनत व तिजारत को तहक़ीक़ से मुंसलिक करने की अहम संगीन साबित हो रही हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशिश है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी, मैं अपनी बात को
سمیٹتے ہوئے اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس سیشن سے متعلق بزنس کمیونٹی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں مخدوم کیسر رشید نام ہے میرا, اور یہ میرا چیمبر آف کامرس کا سیکنڈ وزٹ ہے. فرسٹ وزٹ میں نے 2010-11 میں کیا تھا جب میں یہاں چیف ٹریفک آفیسر تھا, اور آپ کے اس گجرانوالہ شہر میں ٹریفک سگنل اس وقت میں نے اور ہمارے ڈی سی نبیل عباس صاحب نے ہم نے مل کے لگوائے تھے. مجھے ہمیشہ گجرانوالہ سے اس طرح سے یاد رہتی ہے کہ فرسٹ ٹائم ٹریفک ہم نے ایز اے چیف ٹریفک آفیسر لگوایا. دوبارہ آج میرے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دوبارہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں, آپ کو FIA کے اسکوپ اور ان چیزوں کے بارے میں بتائیں, اور آپس میں انٹریکٹ کریں کہ کوئی آپ کے پرابلمز ہیں, ہمیں کیا ایشوز ہیں, آپ کے کیا ایشوز ہیں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آگے اس کو لے کے چل سکیں. ابھی ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں, شاہد صاحب کی آپ کو دیکھیں گے. شاید مجھے جیسے کا نام بتایا, میں کام کر رہا ہوں, اور گجرانوالہ FIA کے حوالے سے ہم نے پریزنٹیشن تیار کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو گجرانوالہ FIA کا ہو سکے, اور اوور آل FIA کی جو ورکنگ ہے, جو کارکردگی ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. سب سے پہلے FIA گجرانوالہ کی اسٹیبلشمنٹ جو 1 سال 2004 کو گجرانوالہ میں اس کا کام عمل میں آیا تھا, اور پہلے یہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے طور پہ اس کا ایک اسٹیبلشمنٹ اس کی ہوئی, لیکن 2013 میں جو اس کے دوسرے ادر ونگز ہیں وہ بھی FIA میں بہتر ہو گئے, اور آج تک ہم اس کو FIA کو پروجیکٹ سرکل کے نام جانتے ہیں. اور ٹیریٹوریل جوسڈکشن پہلے گجرانوالہ ڈویژن کے ایک ہی آفس تھا, اور وہ یہی جو گجرانوالہ میں قائم ہے یہی اس کو آفس کرتا تھا, لیکن 2017 کے بعد سے اب گجرانوالہ کے 2 حصے ہو چکے ہیں. لاسٹ ڈویژن اس کا علاقہ آفس ہے, اور گجرانوالہ جو ہے وہ گجرانوالہ, سیالکوٹ اور ناروال کو, ان علاقوں میں جو FIA کے متعلقہ جرائم ہیں ان کی تفتیش اور ان کے مقدمات کے لیے ہم لوگ گجرانوالہ میں مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈومین کی بات کریں گے. FIA کی ڈومین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کو 1 by 1 انشاءاللہ بریف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1 جو ہماری ایک ٹاپ گجرانوالہ کے حوالے سے جو ایک پرائرٹی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے, وہ ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کو روکنا ہے, کیونکہ گجرانوالہ اور یہ گجرات کا جو علاقہ ہے یہ ہیومن اسمگلنگ اور ٹریفکنگ کے لیے بہت زیادہ یہ مشہور بھی ہے اور معروف بھی اس حوالے سے ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو قوانین ہیں, میں تھوڑا سا ان کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں. امیگریشن آرڈیننس ہمارے پاس ہے 1979, پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹ ایکٹ ہے, اور ٹریفکنگ ان پرسن ہے 2018. ان کے تحت ہم اپنے جو تمام ہیومن ٹریفکنگ اور اسمگلنگ کے اندر آنے والے جو میتھڈز ہیں, جو مقدمات ہیں یا انکوائریز ہیں, وہ ڈیل کرتے ہیں. دوسرا ہمارا بڑا جو حصہ ہے گجرانوالہ FIA کا, وہ اینٹی کرپشن کا ہے. اس میں FIA جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ FIA فیڈرل ڈپارٹمنٹس کی اینٹی کرپشن بھی ہے, اور جتنی بھی ان کے امپلائیز یا ان کے متعلقہ لوگوں کی طرف سے کوئی اگر کرپشن کی شکایت ہوتی ہے تو اس کی تفتیش کے لیے اور مقدمات قائم کرنے کے لیے FIA اس میں اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے. اور اس کے لیے جو ہمارا قانون ہے وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے, جو 1947 میں جو کہ بنا تھا. دوسرا جو بڑا اس کے بعد جو آئے گا وہ ایسیٹس بیانڈ مینس کا ہے, جو FATF کے رجیم کے انٹروڈکشن کے بعد یہ ایک چیز زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے کہ جو لوگ جن کی جو ایسیٹس ہیں وہ ان کے بیانڈ نون مینس ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کی پراپرٹیز یا اس کے بینک بیلنسز یا جو اس کی بلانگنگز ہیں وہ جو اس کا پریزنٹ کاروبار ہے اس سے میچ نہیں کرتا, تو اس کو بھی FIA لک آفٹر کرتی ہے اور اس میں دیکھتی ہے. اور یہ بھی وہ PCA پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اندر بھی جو بات ہے جو ایسے بیانڈ مینس کو کور کرتی ہے. اس کے بعد بینکنگ کرائم ہے. FIA چونکہ شیڈول بینکس ہیں فیڈریشن کے اندر آتے ہیں, تو اس حوالے سے فیڈرل ایجنسی ہونے کی وجہ سے FIA ہی ایسے تمام جرائم کی انویسٹیگیشن کرتی ہے جس کے اندر کوئی بینک امپلائی یا بینک امپلائی کی مدد سے کوئی پرائیویٹ آدمی بھی اگر اس میں کوئی ڈسیٹ کرتا ہے, کوئی نقصان کرتا ہے, کوئی ڈیفراڈ کرتا ہے, تو وہ اس کو FIA انکوائر کرتی ہے اور انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اور اس کے لیے بھی ہمارا جو مین سیکشن ہے وہ 409 ہے PPC کا.
वो इसमें हम उसको इन्वोक करते हैं और उसके जरिए हम जो भी सजा का अमल होता है वो उसको होता है। इसके बाद बिल्कुल डिफॉल्ट है, कर्जा बैंक से लेता है और अगर उसको बिल्कुल डिफॉल्ट करता है तो वो भी FIA ही उसको रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वो उसके तहत हम FIR देते हैं और रिकवरी तक हम कोशिश करते हैं कि बैंकों से जो लोग रिकवरी जो लोग लोन लेके डिफॉल्ट कर जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनकी रिकवरी हो सके। कॉर्पोरेट क्राइम हमारा एक विंग है जिसमें जितनी कॉर्पोरेशन हैं जैसे SNGPL है, जैसे PTCL है, जैसे PIA है, इक्विटी स्टोर्स है और इस तरह की और भी कॉर्पोरेशन है, उनके अंदर होने वाले जराइम जो हैं वो हम कॉर्पोरेट क्राइम की तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा टैक्स एवेजन जो है, अगर FBR ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई फर्द टैक्स एवेड करता है तो वो भी FIA का मैंडेट है, उसमें भी FIA कार्रवाई करती है। ओवर अंडर इन्वेस्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आप लोगों के चैम्बर से व्यवस्था है, आप लोगों के लिए ये बात जानी पहचानी होगी कि हम लोग हमारे कुछ लोग अंडर इन्वेस्टिंग और ओवर इन्वेस्टिंग के जरिए भी मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको भी हम सेक्शन 156 है कस्टम्स एक्ट का 1969 का, ये भी हमारी डोमेन में आता है FIA की। इलेक्ट्रिसिटी सुई गैस थेफ्ट जो मेजर लेवल पे है, जो ज्यादा लार्ज स्केल लेवल के ऊपर होगा उसको भी FIA देती है। इसके अलावा IPR है, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम कहेंगे कि अगर कोई किसी अदारे की किसी शख्स की कोई प्रोडक्ट जो है वो IPR से कवर है तो उसको कोई बंदा प्राइस अगर बनाने की कोशिश करता है, बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है या ट्रेड करता है या उसको वो इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए भी FIA की एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कार्रवाई करती है। साइबर क्राइम इसके अलावा है जो आजकल आप लोगों को पता है प्रेवेंट क्राइम है, कंप्यूटर, मोबाइल या ईमेल की मदद के साथ आप लोगों के अक्सर शार्कोट से भी केस आते हैं जिसमें उनके कस्टमर जो है वो चोरी हो जाते हैं ईमेल की मदद से, तो उसके लिए भी हमारा साइबर क्राइम जो है वो उसमें रोल प्ले करता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसके अलावा आजकल FATF के रिजीम आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक FIA की डोमेन है कि अगर कोई बंदा टैक्स की मदद से पैसे कमा के, इवेजन की मदद से या किसी और जुर्म की मदद से पैसे कमा के उसको किसी और शक्ल में कन्वर्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस या किसी भी जगह पे उसकी शेप चेंज करता है, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और वो भी FIA की डोमेन में आता है। हुंडी वाला ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ कंट्री या विद इन कंट्री या बाहर से अंदर आना या अंदर से बाहर जाना बगैर बैंकिंग चैनल के, उसको हम हुंडी वाला कहते हैं और ये भी FIA की डोमेन है। और हमारा FARA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है 1947 का, इसके जरिए हम इन लोगों का कार्रवाई भी करते हैं और भी सजा मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन ऑर्गेन्स ट्रांसप्लांटेशन है, कोटा में 1994 के अंदर जो इलीगल लोग अपने गुर्दे या कोई इस किस्म के टिश्यूज वगैरह जो हम डॉक्टर्स वगैरह की मदद के साथ या कुछ गैंग्स की मदद के साथ वो गरीब लोगों के निकलवा के नीडी या बेनिफिशरीज को देते हैं, उसके तहत उसके लिए भी FIA एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कार्रवाई करती है और उसको हम साथ करते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन आप लोग तमाम एयरपोर्ट्स यूज करते हैं, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर FIA ही तमाम लोगों की इमिग्रेशन करती है। अगर किसी ने पाकिस्तान में आना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है तो वो क्लियरेंस उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वो भी FIA की जिम्मेदारी है। अभी हम आखिर पे एक हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिनकी मदद से हम अवॉइड कर सकते हैं FIA के केसेस को। उसके लिए कुछ जो मोटे मोटे जो मामला हमारे समझ में आए हैं, बाकी सवाल आपके होंगे तो डील बैठे हुए डायरेक्टर साहब को जवाब देंगे। प्रिवेंटिव मेजर जो हमारे हैं उसमें मेनली ये चीज़ है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी हो वो थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए। जब हम अदर चैनल यूज करते हैं लाइक मीडिया वाले के जरिए हम पैसों की आमदन करते हैं, उसके ना सिर्फ मुल्क को नुकसान होता है बल्कि उसमें हमें ज़ाती तौर पर नुकसान होता है। हम उन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते, चाहे वो गुड्स की शक्ल में हो या सर्विसेज की, या हमारे पास जो हमारे पास कुछ पैसे वगैरह आए हैं या प्रॉपर्टी बनाई है तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो एज पर स्टेट बैंक की गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करना चाहिए। वो जितने भी हों तो वो आप लोग को ज़ाहिर आपके बैंक में बताते होंगे तो उसको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा SOP जो है कस्टम के हवाले से
अगर हम कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो कस्टम की जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सर्कुलर्स के अंदर ले डाउन की हुई हैं, कस्टम एक्ट के अंदर भी है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम मसाइल से बच सकें। और सेकेंडली इसमें ये है कि जब से ये फैक्ट का रजीम आया है उसके बाद अपनी जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हमें खास तौर पे मद्देनजर रखना चाहिए, उनके ऊपर क्लोज आई रखनी चाहिए ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने से वो बच सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्टेट बैंक में एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसे FMU कहते हैं, और उसका सिर्फ ये काम है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन वो एज पर स्टेट बैंक की SOP के खिलाफ हो तो वो उसके ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं और फिर वो उसके ऊपर FIA कार्रवाई करती है। तो बेहतर है कि आप पहले उसको फॉलो कर लिया करें ताकि उसकी जरूरत न पड़े। और गुजरांवाला चैम्बर का जो फोरम है उसे चाहिए कि IPR को रोकने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कवर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो जो ऐसे कोई इम्पोस्टर हैं जो लोग बनाते हैं किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं कि जो जिसके उनपर लाइट्स नहीं है, उनको अपना वो मेंबरशिप ही ना दें ताकि इन लोगों के खिलाफ भी हम आसानी से कार्रवाई कर सकें। और हमें जरूर बताएं कि हमारे पास जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि जिनका उनके पास लाइसेंस नहीं है या वो फाइज नहीं है या वो किसी और के कॉपी राइट के तहत आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो कॉमन चीज़ें में बोल रखते हैं वो ये है कि चैम्बर का मेंबरशिप यूज हो रही होती है मुख्तलिफ मुल्कों का वीज़ा लेने के लिए, टर्की का, लाइक और डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहाँ से हमें मैसेज आता है कि लोगों की यहाँ पे मेंबरशिप होती नहीं है लेकिन फेक बना के उनको साथ लगाई जाती है। तो उसके लिए इसको आप फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहा करें पुलिस को ताकि जो गैर करता बन जाए वो इसके अंदर ना घुसे, और हमें भी शेयर कर दिया करें ताकि हमें सामने को मैसेज साथ कम्युनिकेट करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेरे रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से कि बारी बारी जो है ना अपनी टर्न पे क्वेश्चन आंसर जो भी हैं डॉक्टर साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह सबके जवाब देंगे और जिसका जो भी मैटर है वो कर सकता है। अजमल वासन जी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हम वेलकम करते हैं कैसे साहब को और ये बहुत अरसे के बाद ये दोबारा हमारे में अपॉइंट हुए हैं और फिर प्राउड में कि जैसे फर्स्ट शनास ऑफिसर हमारे गुजरांवाला में बहुत पहले से आ रहे हैं, पहले भी हमारे गुजरांवाला में रह के गए हैं और एक मतलब दोबारा भी विनती कर रहे हैं उनसे बैठे इनको और उनकी टीम को। अभी आपने प्रेजेंटेशन दी थी, ये तो मैंने महसूस किया है कि मेरा ख्याल है कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बची कि जो बाकी इदारे जो हमारे हैं फर्स्ट हम से ऐसे नहीं वर्क आ रहे हैं कि वो भी करें, सारे काम हैं दुनिया के शायद सारे काम ये भी हैं और ये बहुत जिम्मेदारी से मैंने देखा कि ये इतने काम करते हुए कर रही है तो मतलब प्राउड है और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हर जगह पे उनका रोल पाया जाता है। और अगर ये ज़्यादा मैं समझता हूँ अगर ये यहाँ पे जिस कैपेसिटी में ना काम कर रहा हो, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हैं तो बहुत मुश्किल है सब चीज़ों की सब। दूसरा आपने भी ये बात की कि मेम्बरशिप के हवाले से जो मेम्बरशिप है ये तो बिल्कुल ही हमारी चैम्बर की वेबसाइट के ऊपर आप हमारे चैम्बर की क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर हो भी जाएंगी और ये चीज़ें हमारे पास सर्वर पर रेडी होती है, हमारे पास सेक्रेटरी साहब हैं उनके बाद आपको जिस तरह हम भी गए गए चीज़ें हम आपसे शेयर इंशाल्लाह करने जाते हैं तो जिम्मेदारी लगाएंगे तो बिल्कुल चीज़ें ये तो ठीक चीज़ें हैं बिल्कुल लोग हमारे भाई लोग है कि पाकिस्तान से बाहर जाना है चैम्बर जैसे रिस्पेक्टेड जो इदारा है हमारे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए कि मतलब हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल इदारा है, अगर कोई लोग इसे भी यूज़ करते हैं वो नहीं करना चाहिए और हमें भी मतलब हम बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ का लाइजन में कि अगर इन फ्यूचर कोई भी चीज़ करता है या हम अगर महसूस करें तो उस चीज़ का हम सब जवाब करें। इस चीज़ का पता फायदा क्या होगा अगर आज एक फेक मेंबरशिप को देता है और उसको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो कल आप असली बार की मेंबरशिप देंगे तो डाउट करेंगे इनका पुराना रिकॉर्ड ये है इनकी फेक आई हुई है पहले तो उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपकी बेहतरी के लिए। और एक और इस पर मैं ज़रा कमेंट कर दूँ कि वीज़ा मैटर और मेंबरशिप जो है ना वो हमारा मैं खुद देख रहा हूँ मेरे पास में ये सारा काम और वो इतना स्ट्रिक्ट है कि हम किसी के इवन साइन नहीं मिलते तो हम उसको नहीं जारी करते। फेक मेंबरशिप वाला तो चक्कर ही नहीं है कि किसी का अगर इधर मेंबरशिप नहीं है तो उसको लेटर इशू होगा, ये वाली काम ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ आ रही है
شیئر کریں, آپ لوگ بھی ہمیں شیئر کریں کہ یہ کام آپ لوگ ہمیں بھیجیں کہ جی فلاں بندے کا یہ ہے ادھر, ہم سے آپ اس کو ویریفائی کرائیں. ہمارے پاس اتنی اسٹرکٹ اس کی ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اس کے بعد وہ میرے پاس آتی ہے تو 4-5 لوگ ادھر بیٹھے ہیں, ایسا صاحب ہیں وہ ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں, وہ خود بھی اس کمیٹی میں, اور ایسا میں نہیں سمجھتا کوئی فیک آ رہی ہے. لوگ باہر سے بناتے ہوں تو یہ ادھر سے ایسا بنا کے دیے جانے والی کوئی چیز نہیں. چیز سمجھ آ گئی, اس کو مزید چیک کر لیں کہ یہ آپ بہت چل رہے ہیں ابھی. کون مطلب اتنا اسٹرکٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ مس ہے نا کسی کے پاس, ہم اس کو ویزا لیٹر شروع اور ایک اور چیز کی جو آپ کاپی رائٹ کی بات کرتے تھے, یہ چیز ہمارے کیس ہوئی بہت ہے. ہمارے گجرات کی بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں جو اس چیز سے پریشان بھی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ بالکل کہ جس کام پہ اگر کسی بھی کمپنی کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں تو وہی کمپنی چاہے چھوٹ کے وہ چیزیں یہ چیزیں بہت کامنلی ہیں, اور اس طرح کے کیسز ہمارے چیمبر میں بھی آتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ ضرور فوکس کریں. بالکل آپ ہمیں سیکٹریٹ سے بتائیں, ڈیجیٹلی بتائیں, ایکٹیو بتائیں, فوراً ایکشن پہلے آلریڈی کر بھی رہے ہیں, مزید کریں. اور باقی میں باقی ساتھی بیٹھے وہ بھی کوشچن کرنا چاہیں گے. رانا اختر صاحب ہیں جی ہمارے, رانا اختر صاحب ہماری ٹریول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ماشاء اللہ ان کی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے ہماری ادھر, اور 200-250 کے قریب ان کے بورڈ ہیں, بڑی اچھی ریپیوٹ ہے ان لوگوں کی. اور رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے چیمبر آف کامرس کی وزارت سے یہ ہمارے ایسوسیشن کے ممبران تشریف فرما ہے, ان کا بھی شکر گزار ہوں. ان کے پلیٹ فارم سے ہم ویلکم کرتے ہیں جناب مخدوم کیسر صاحب اور جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب. ہم گجرانوالہ میں جی ہماری ایسوسیشن 1988 سے اسٹیبلش کی گئی, اور اس وقت بہت کم لوگ تھے. بعد میں آہستہ آہستہ یہ بزنس بڑھتا گیا, ایجنسیز بڑھتی گئیں. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ چیمبر آف کامرس میں ہماری 3 ایسوسیشن جو ہیں وہ اس کے تمام ممبران اس کے ممبر, جن میں ایک ٹریول اینڈ ٹور ایسوسیشن وہ صرف اور صرف ٹکٹنگ سے وابستہ ہے, اور سیکنڈ حج و عمرہ ایسوسیشن وہ صرف حج اور عمرے کا بزنس کرتے ہیں. اس کے بعد اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر وہ صرف ریکروٹمنٹ کا کام کرتے ہیں. یہ تینوں ایسوسیشن جو ہیں وہ ہماری اس چیمبر کی ممبر ہیں. تقریباً ہمارا 250 کے لگ بھگ ادھر ممبر ہے جی ٹریول ٹریڈ کا. اور گجرانوالہ میں جی بزنس کے حوالے سے 2 قسم کے بزنس پائے جاتے ہیں. جیسے ایک وہ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے, انسانی سمجھ کرتے ہیں, غیر قانونی لوگوں کو بھجواتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی. اور جو لوگ نان لائسنسی ہیں ہم ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً FIA کو بھی لیٹر لکھتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کو بھی جو لائسنس جاری کرتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں, بلکہ لسٹ بھجواتے ہیں کہ یہ لوگ لائسنسی ہیں, یہ نان لائسنسی ہیں. جو لوگ نان لائسنسی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, جو لوگ غلط کام کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی آدمی کوئی کسی دوسرے سے فراڈ کرتا ہے, کسی شریف شہری سے فراڈ کرتا ہے, کوئی اپنا غریب آدمی, بہت سے غریب آدمی ہم نے دیکھے ہیں جس میں جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں, باہر جانے کا خواب دیکھتے ہیں, پھر وہ ادھر بیچارے ذلیل ہوتے ہیں. اور اس میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا کوئی لائسنسی آدمی انوالو نہیں ہوتا. جتنے بھی نان لائسنسی ہیں, آؤٹ سائڈر لوگ ہیں, وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ یہ غلط کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں ٹائم دیا, ہماری بات سنی. ہمارا FIA کے ساتھ
अरसा दराज से जब से FIA का इधर ऑफिस बना हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात चले आ रहे हैं। कभी कोई क्लैश का माहौल आज तक नहीं बना जी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हमने मिलजुल के काम किया। जो भी इधर FIA के सीनियर अफसरान आते हैं जी, हम उनको वेलकम करते हैं, हम खुद जाते हैं, हम कहते हैं कि जी अगर कोई इधर गुजरांवाला में आपको खुफिया ज़राए से कोई खबर मिले कि फला एजेंसी गलत काम में या इंसानी स्मगलिंग में या नाइन एजेंसियाँ हमें बताएं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हम आपको खुद प्रोवाइड करते हैं कि जिनको पकड़ें। तो लिहाजा अब ये दो तरह के लोग जो हैं, एक जेन्युइन बिजनेस करने वाले हैं, उनकी FIA की तरफ से जी मैं कहता हूँ कि हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको बिला वजह वो तंग ना किया जाए। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत बड़ा इशू है गुजरांवाला गुजरात के स्कूल में। मेरे ख्याल में 70% केसेस जो है ना वो ये किसी वीजा फ्रॉड एजेंसी से डील करते हैं। ये टू वे स्टोर है, इसमें हम तो अपने सोर्सेज भी हैं, हम भी देखते रहते हैं कि कौन इलीगल काम कर रहा है, कौन वो नहीं कर रहा। इसमें आपसे मैं दिलाऊंगा अपने बिजनेस को अपने आप चलाने के लिए। आप एक मेरा पुलिस का एक ना मेट्रो ऑफिसर, तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे जितनी पुलिस की यूनिफॉर्म में कौन फिर रहा है, यहाँ पे कौन पुलिस वालों को काम कर रहा है, कौन पुलिस के बयान कर रहा है या वो कर रहा है। हर कारोबार को पता होता है ना। अगर ये टाइल्स का करते हैं इनको पता होगा कौन से 2 नंबर टाइम वाला कर रहा है। आप किसी चीज़ का करते हैं, फ्लॉप का करते हैं तो आपको पता होगा कौन 2 नंबर फ्लॉप करो। इससे आपको भी पता होता है कि आपको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे से शेयर करें, इससे आपका फायदा होगा। कि अगर जेली या 2 नंबर या अनरजिस्टर्ड या लाइसेंस बंदे आएंगे हमारे पास, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। हम भी अपने करते हैं, हमें भी रिपोर्ट मिलती है, आप भी इसके साथ सपोर्ट करें ताकि हम मिलकर जो इसका करें, ताकि जो लीगल काम करें उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो। तो इसमें आप हम भी शामिल करेंगे। आप हमारा मेरा एक सवाल ये है गुजरांवाला साहब से, हमारे तरफ एक लीगल जो काम करने वाले हैं उनका एक इशू आ रहा है। FIA में बोलती है कि आप पासपोर्ट रख सकते, जबकि सर हम ट्रैवलिंग टूर्स के लाइसेंस है हमारे पास, रेगुलेटरी के लाइसेंस हमारे पास। अगर हम पासपोर्ट ही रखेंगे तो वीज़ा कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? एक तो हमारा ये बहुत बड़ा इशू है, करोड़ों रुपये लगा के बैठे तो दूसरे नंबर पे पिछले दिनों पे जो कि एक हमारे भी पर्चा हुआ है FIA की तरफ से, ये हुआ से जाएगा ये ऑफिस में, जबकि ये बंदे के पास आता है, इस बंदे के पास ट्रैवल टूरिस्ट का लाइसेंस, इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स से सारे इसको बताया हमसे बैठ के टेबल काट कर इसका जो जुर्म है उसको लिए अगर नहीं तो काटे उसके आप पे उन्होंने हमारे जो कि अभी सर हमारे 6 दोस्त जाएंगे बिल्कुल बिजनेस में सुबह सुबह उठ के खड़े होते हैं वहाँ पे, जो कि इस मसले का हल नहीं कर दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि इलीगल कोई काम कर रहा है वो तो इलीगल काम है, एक होता है कोई रजिस्टर्ड बंदा है वो लीगल काम कर रहा है। जरूरी नहीं होता जो भी रजिस्टर्ड है लीगल है वो सब ठीक हो रहा होगा, नहीं कि मुझे भी पता है, आपको पता है हर चीज़ में हर कारोबार में हर नौकरी में ये होता है। जरूरी नहीं ये चीज़ अगर आपको रजिस्टर्ड है और आप लीगल है आप सब ठीक मतलब काम होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे लोगों में काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इशू होते हैं। हम अपने जो आपको भी रेड हुआ मेरे नोटिस में कुछ चीज़ों पर हमने अपनी तरफ से नहीं किया, हमें मुतअद्दिद कंप्लेंट्स आई, कंप्लेंट्स वगैरह हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उन पर इंक्वायरीज हुई, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, लोगों को पासपोर्ट लगे गए, लोगों से पैसे लेके उनको बिना वीज़ा दिए बिना काम दिए, मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, वो हम सेपरेटली भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। नंबर 2 जो आपने पासपोर्ट रखने वाली बात की, ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि आप पासपोर्ट रखेंगे तो उसके बाद ही आप वीज़ा बनवाएंगे ना। पासपोर्ट इस तरह से रखना मना नहीं है, पासपोर्ट रखना इलीगली आप किसी तरह का वो है, आप उसमें ये कर दिया करें, आप जब किसी का पासपोर्ट रखते हैं तो उसको राइटिंग दे दिया करें, मैंने इसका पासपोर्ट इस डेट को ये है किस एम्बेसी का वीज़ा लगाने के लिए दिया, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा उसके पास भी रिकॉर्ड होगा, आपका इलीगल नहीं होगा। ऑब्वियसली सब में कॉमन सेंस है कि वीज़ा लगना तो पासपोर्ट चाहिए होगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पासपोर्ट रखी रखे हैं, पैसे भी लेते हैं, पासपोर्ट भी रखी रखते हैं, महीना 2 महीने 3 महीने के लिए रखी रखते हैं, ना उनको वीज़ा लगवाते हैं ना पैसे देते हैं, वो आप ले लीजिए इसलिए बाकी जो आपका इशू उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन इसी बात पे इसी पॉइंट पे आ रही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं, ट्रैवल को अगर आप दे रहे हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को अरेंज कर सकते हैं। अब तो एंड पर सरकार वैसे जैसे ही साउथ करेंगे कि ये कभी को जगह पे आ जाता है कि सेंटर हो गया है उसमें वो सिर्फ यही माना क्लियर कर दिया कि अगर हमारे पास राइटिंग है आपको पता लिख के लेकर जा रहे हैं कि इस पर्पस के लिए लेकर जा रहा हूँ तो फिर हम उसमें आप उसमें आप उसको भी लिख के दें कि मेरे पास इस पर्पस के लिए प्लीज ले आया और इस मैसेज को भिजवा रहा हूं, ये राइटिंग को आपके पास कोई आपसे पूछे तो तब लिख है। अगर आपने 3-3 महीने 6-6 महीने महीने में रखे हुए हैं तो कौन सा भी इसका कैसे होते हैं वो तो करते हैं क्योंकि ऐसे ही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो तलाक की बात है ना पासपोर्ट कितने होल्ड कर सकते हैं, वो उतनी होल्ड कर सकते हैं जितनी आपने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, जितनी आपको वहाँ से उसकी आई है डिमांड आई हुई है, उस डिमांड से ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो अगले नहीं मिलेगा 1 लाख कुकिंग में मेरा ख्याल है उसकी पासपोर्ट की शायद उसी की जरूरत होती नहीं है, वो पूरा भी वीज़ा हो गया उसको भी आपको दे दें कॉपी दे देना आपके पास भी कॉपी देकर आपको कोई दूसरा करता है और आप बता सकते हैं कि मैंने इस मैसेज में दिया देखो डिमांड और वो जो है आपके पास पोजीशन को जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़्यादा यूथ फार्मिंग में लाइसेंस होल्डर भी हूँ, आयाता भी है और प्राइवेट भी तीनों वैलिड लाइसेंस है मेरे पास, तीनों अदारों से वैलिड। ये जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं ये मेरे ऑफिस की बात होती है, जबकि मैं पिछले 23 ईयर्स से इसमें मेरी जीरो कंप्लेन है 23 ईयर्स में। जिस दिन से ये मेरे ऑफिस में रेट हुई है उस दिन भी मैंने FIA वाली मीटिंग आई थी, कभी उनके साथ कोई ऐसा तकरार तक नहीं किया। सूची से हमारी इकट्ठी हुई है, उन्होंने बोला यार इस बंदे का जीरो कंप्लेन है, अगर बंदा कंप्लेन है इसके खिलाफ तो ले जाए, अगर नहीं तो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें। मेरे पैसेंजर वहाँ पे मौजूद है जिसके पास होते जिसकी फैमिली उसका भी FIA में नाम रखा आज तक वो मेरे साथ FIA में वो जेलों पे जा रहा है। आप इंडिविजुअल केस है तो मेरे पास इंडिविजुअल आ जाएगा, हम उसको देख लेंगे सॉर्ट आउट कर 6 बंदे मेरे मार्केट के मेरे साथ उन्होंने माफ कर दिए, 40 बंदे नाम दूँ मैं आपने अगर आप सरकार में दाखिल करेंगे तो उसमें ये सर यही बात जो हो रहा है मैंने बिल्कुल आपको काम करने का राइट, अगर आप नहीं छेड़ा आपके नहीं करें कभी वो डेट नहीं तो आपको यही मैं कह रहा हूँ अगर कोई लीगल इशू है तो हम उसको कर देंगे। शामिल क्राइम की बात कर रहे हैं शायद वहाँ भी मिल इशू है पासपोर्ट्स के ऊपर भी ये तो जनरल सी बात कर रही है समझ आती तो आप गवर्नमेंट के बारे में ऐसे ये वो है मैं इसको वो नहीं समझता। आपने कौन सी स्पेसिफिक टाइम कौन सी करते हैं एक्शन होता बात नहीं है ना सी कॉपीराइट में था जो वो प्रोटोकॉल बनाने वाले सारे तो हम साया मैच को बनाता था तो उन्होंने सब टाइम मैंने रिटर्न दी जाके मुझे 1 महीना हुआ मैंने कॉपीराइट 5-6 रेट कर दिए हैं ये मैं आपको वाली बात कर रहा हूँ मेरे से जाने के पहले का मसला है तो उसका मैं नहीं करता, लेकिन एक जनरल हमारे परसेप्शन थोड़ी होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना भी है कि बिल्कुल एक सिफारिश नहीं है कुछ नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन होता जरूर है और ये सारा मुल्क का मसला है। मैं आपको नहीं कहूँगा जैसे हम देखते हैं मुल्क का ये है ना वो है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल होता नहीं है, पाकिस्तान रुक नहीं जाता सबके पास सिफारिश नहीं होती, सबके पास स्लो हो जाएगा लेकिन होता है बात कर रहे हैं वो हमारे पास डायरेक्ट उसकी आती नहीं है।
तो आपका जो ट्रिब्यूनल आप उसको ट्रिब्यूनल को देंगे, ट्रिब्यूनल हमारे हेडक्वार्टर को देगा, हेडक्वार्टर में देगा, उसका प्रोसेस ही हो रहा है कि अब आप लोग का हमारे पास आने का उसको सर मेरा एक सवाल ये है कि इंडस्ट्री में हर कोई छोटा बड़ा कारोबार करता है, कोई छोटा कारोबार करता है, कोई बड़ा, इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक बंदा जो 20-25 लाख से या 50 लाख से काम कर रहा है, कमजोरी होता है दूसरे कारोबार के हाथ से इंडस्ट्री होती है, तो वो उसके पैसे कई दफ़ा इस तरह से अक्सरियत केस ऐसे होते हैं कि पैसे नहीं उसे मिल रहे होते, 4-5 लाख उसका फंस जाता है, वो कहते हैं यार हमारे पास हालात नहीं ठीक, हम दे नहीं सकते, या हमारी इंडस्ट्री डूब गई, हमने एफआई इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? पुलिस एफआई कुछ नहीं करती है, पुलिस करती है, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं करती। डिपार्टमेंट है अपना एफआई जब होते हैं इशू, अगर आपको दीजिएगा, आपने किसी को दिया, वो भी हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, किसी बैंक के साथ, तो उसी डिपार्टमेंट फिर वो एफआई करती है। चलिए आपका पर्सनल लेन देन है, तो पुलिस का केस अगर वो सर जो आपने अभी बात की है, बात तो एक पहलू से ठीक है, ये सारा सिलसिला चल रहा है, उसमें पासपोर्ट हमें रखने की क्या जरूरत है? कस्टमर आता है, हमें 8-10 पासपोर्ट दे जाता है, 5 लाख दे जाता है, 15 लाख आया है, ठीक है, हमें इसलिए भी पासपोर्ट होल्ड करने पड़ते हैं, इसको पासपोर्ट दे दिए, टिकटें वगैरह बना दी, दे दी, हमको गए इस काम से, तो बिजनेस का एक 2 वे सिस्टम है ना, कोई चीज़ हमारे पास है, होल्ड की हुई है, आए भाई पेमेंट क्लियर करें और हमें दे दें, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करनी पड़ती है। नहीं वो उसका उन्होंने बता दिया है कि वो आप लोग एक कॉपी अपने पास रख ले, एक उनको दे दें, ये हो गया। राजा साहब आप कुछ कहना चाहिए? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद 20 साल माशाल्लाह आपको पता है काफ़ी पुराने हैं, तो ऑलवेज अपने मैटर्स पे जाता रहता हूँ, अपने दोस्तों को मसला होगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे लोग हमारे साथ कॉपरेट करते हैं। मसला हमारे साथ यही है कि ये जो बुला प्यार है ना, इनके पासपोर्ट हम पूरा कैरी कर ही नहीं सकते, जो प्राइवेट है जिसमें मतलब हम जो लंबी जर्नी बढ़ा देते हैं, 7 लोगों को रिलीज करते हैं, उसमें से हमारा अलहमदुलिल्लाह पूरी का सामना है। अगर कुछ भी शर्म आती है एज के सुबह हम चले गए हुए बता के बोले यार 6 माह हो गए हैं, मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद है, मुझे मैंने भी ऐसा एक काम किया था कोई 7-8 साल पहले, तो बंदे ने बोला कि 2 माह में बच्चा पैदा हो गया था, आप 2 माह में मेरा वीज़ा नहीं बनवा देंगे, तो मैंने बोला यार सुबह आओ अपने देखो, किसी चीज़ से उसका वीज़ा नहीं आता। मतलब ये है कि हम काम का पासपोर्ट रखते हैं, ज़्यादातर 2-4 दिन का उम्र मेरा ये जो क्लाइमेट है वो भी महीने 2 महीने में साल हो जाता है। मतलब ये कुछ लोग सीधा दूसरा हमारे को आगे दे देते हैं, जैसे कि मैं मुझे पता है कि मैं छोटी सी भी करती हूँ, मैंने इनको बताया नहीं है, मैंने बोला मेरा बहुत बात है जब मैं अगले एयरपोर्ट में पहुँचा, उधर जब मेरा बायोमेट्रिक आता है, पता है कि बायोमेट्रिक का तो था वो मुझे रोकता देते हैं, वो बातचीत की टिकट की हमें पड़ जाती है, और वो बंदा आके पहले तो हमारे साथ बात नहीं करता है कि मैं आपकी वजह से हुआ, अभी बात तो वो बताते ही नहीं, तो उसके बाद जब हम लोग गए तो फिर वो सीधा एफआईए में जाता है। हमारा कल रिक्वेस्ट है आज सर ना आपके साथ हमारा एक बहुत सिस्टम है, हमारे किसी भी बंदे से आप कोई कंप्लेंट नहीं है, जब भी गए हैं बड़े अच्छे तरीके से बात कर उन्होंने कॉपरेट किया, मैटर भी सॉल्व किया। मसला ये है कि जब जैसे आप प्रॉपर बैठे हुए हैं, हमें कोई एक बंदा हम आपको नॉमिनेट करते थे उधर आप जैसे आपने आगे सुनाया, तो वो बनती है कोई इतनी एमरजेंसी नहीं है, तो हमें एक उस बंदे को कॉल करें फलाने जगह का मैटर है, उनको लेकर आगे शायद 20 में मुझे करते रहते कि यार किसका मैटर है, उसको आप साथ लेके आओ, उसको आओ इधर आके जो भी है ऐसे आप इसमें करें ना, आप होटल में आप एक दिन ना आपकी जो एसोसिएशन ट्रैवल एजेंसी आप किसी दिन आ जाए मंडे ट्यूसडे को ऑफिस में, हम के साथ बैठ के राय सबसे पहले तो मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट को मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है एफआईए के हवाले से कि आप तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम। ये मीटिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रहती है,
इसका एक्सपीरियंस और मेरा और खसूसन शायद वजीर साहब का बड़ा पुराना साल है, ये बड़े हमारे सीनियर हैं, बड़े कोऑपरेटिव हमारे मुस्लिम हैं। थोड़ा सा तरीक़ेकार में फ़र्क आ गया हुआ है, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अब्दाल साहब हमारे पास आए थे, बड़े सीनियर हमारे रहे हैं, बड़े के IG भी रहे हैं। तब से हमने इसका आगाज़ किया था, जिस तरह राना अख्तर साहब हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह, इनकी सरपरस्ती में हम लोग एसोसिएशन चलाते हैं। मैं एक्स प्रेसिडेंट भी हूँ और काफ़ी अच्छा रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि हमारा हमेशा से कोऑर्डिनेशन रही है FIA के साथ। कभी किसी मौके पे भी हमने जो भी हमारे ऑनरेबल आए ऑफिसर, हमने उनको वेलकम था। तरीकाकार ये था कि हम सबसे पहले, मैं आपको टॉपिक से सिर्फ आ जाता हूँ, आपको वेलकम तो हो गया। नॉन लाइसेंस होल्डर जो हमारा, वो हमारा राइट हक मार रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में रहने वाला। हमने बड़ी कोशिश की है कि भाई उनको कोई रोका जाए अपने तौर पर, लेकिन चूँकि हम आवाम में बैठे हैं, हम शहर में बैठे हैं, हमारे भी हम पे असेट ड्यूटी FIA की, इफ यू डोंट माइंड, योर ड्यूटी पूरी तरह निभाई नहीं जा रही। हमने एक लिस्ट, जब भी कोई ऑफिसर आते हैं, हम सबसे पहले अपनी रजिस्टर्ड जो इदारे हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, उनके हम देखते हैं, लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर SHO साहब को मैं खुद देख के आता हूँ। अब थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा हमारा कुछ दूरी हो गई है, इस वजह वो भी इंशाल्लाह आज मीटिंग के बाद आप देखेंगे हमारी और आपकी कोऑर्डिनेशन किस तरह डेवलप करेगी इंशाल्लाह हर मामले में। शुरू से ये है कि एक तो नॉन लाइसेंसी को फौरी तौर पर सदेबाप किया जाए, जो हमारी लाइसेंस की बकायदा जो लिस्ट आपके पास है, उसके अलावा जितने बैठे हुए हैं उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम कहते हैं तो नाम कभी ने सपोर्ट हमेशा हमने पे की। इसका एक्सपीरियंस ये था सर कि जब भी कोई ऑफिसर आए, उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमारी कमेटी बन जाए, एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उसकी दोस्त, और ये कमेटी के मेंबर मेरे दोस्त भाई रहे हमारे माशाल्लाह, शायद जी साहब चुके हमारे बड़े सीनियर भी और बड़े एक्सपर्ट भी इस मामले। उसका ये फायदा हुआ कि एक तो FIA की जो जिम्मेदारियाँ और उनकी जो टाइमिंग्स है, उनका बड़ा फर्क आ गया, इसलिए कि जब भी कोई मामला होता है हमें कमेटी को फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये आपका लाइसेंस होल्डर है, जिस तरह ये मामला बना है हमारा, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है सर। हमने बड़े इसको अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल तरीके से अभी भी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें वेलकम का और इसको आपने वो बात सुनी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इस मसले को हल करने में उम्मीद है। इतना बड़ा इशू नहीं है, इससे बड़े बड़े इशू आए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंदर बैठ के मामला को किया। और भाई ये भी अगर अच्छा हो जाता, आज कमेटी बनी होती, कोऑर्डिनेशन होती, ये भी मामला नहीं होना था। आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट हमारे लिए सबसे पहले, फिर हमारी बात है, ठीक है सर। लेकिन हमारे अगर रिस्पेक्ट में फर्क आएगा तो उसमें जाहिर है हमारा हक है। इस मामले में इंशाल्लाह हम बैठते हैं, करते हैं, ये भी हो जाएगा। अब इसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत है, जिसमें आपके सीनियर मेंबर्स हों, हमारी एसोसिएशन के 3 मेंबर हों, 5 बंदों की कमेटी होती है, उसमें एक इंस्पेक्टर साहब होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर और 2 मेंबर टीम हमारे। इस तरह की जो भी मामला था, हम रजिस्टर्ड बंदे को कभी भी हम आपने कभी कहा, और इसकी हम गारंटी देते हैं कि सबसे बड़ा ये देखें, जो ह्यूमन ट्रैफिक का भी मसला हुआ है गुजरात में, ये मीडिया में बदनामी हमारी है सर। हमने शुरू दिन से, ये आपको याद होगा, पिछले दिनों हमारे बड़े अच्छे दोस्त आए थे, हमने एक सेमिनार भी करवाया था ह्यूमन ट्रैफिक में खसूसन। इसके अलावा भी जो फंक्शन हुए इसमें बढ़ जाएगा खुद आपकी कोऑर्डिनेशन, FIA की कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे मैरियन में हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ये चैम्बर वाले हॉल में यहाँ भी मीटिंग हुई। तो इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दायित्व रजिस्टर्ड अदारा एक की भी कंप्लेंट इसमें नहीं है, लेकिन बदनामी हमारी है सर। हम इसको बिल्कुल सदैव करेंगे कि ये मामला को भी देखा जाए, एक नॉन लाइसेंसी को देखा जाए। तीसरा हमारे एक और प्रॉब्लम सर, सियालकोट एयरपोर्ट इमिग्रेशन हमारे अंदर है, गुजरावाला माशाल्लाह आप उसको कर रहे हैं, आपके अंदर है। उसमें प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी क्लाइंट को कहते हैं आप अपनी सियालकोट से टिकट बनाएं, वो कहता है सॉरी सर मुझे सियालकोट नहीं है। भाई वो इमिग्रेशन हमें तंग करती है, बार बार पूछते हैं, ये होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं। वजह क्या है? कोऑर्डिनेशन। जो हमारा सबसे कीमती असासा हमारा क्लाइंट है, वो मिस कर दो। जब हम कहते हैं लाहौर यार उनके रिपोर्ट को प्रमोट करना, इसके बारे में हमारी चेयरमैन साहब से ऑलरेडी सियालकोट एयरपोर्ट के चेयरमैन साहब से मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने ये 3 साल पहले की बात है कोर्ट से, हमने उसको किया तो सारा मैनेज किया, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में कमी आ गई। इसको थोड़ा सा ड्राइव कीजिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद एक हमारे साइबर क्राइम, हमारा तकरीबन 90% जो एसोसिएशन के हमारे जो बिजनेस है वो आजकल ऑनलाइन बैंकिंग के है। हमें हर वक्त करता रहता है यार ये मामला भी, ये मामला। तो मैं चैम्बर को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने मेरे सीनियर सारे बैठे में, कि इसको बारे में भी साइबर क्राइम की जो कमेटी बनाई है, जो कि जितने हमारे मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या हमारे एसोसिएशन के, उनको कम से कम इसमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें अपने मामला को
ڈسکس کر کے اس کو حل کرو تاکہ بات پھیلے نہ یا بات آئے نہ, جو اصل ہو رہا ہے اس کو پکڑا جائے. یہ چیز آ گئی, یہ بھی پوائنٹ سر ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک وہی جو ہمارا ٹورزم کا لائسنس وغیرہ الحمدللہ یہ سارے رجسٹرڈ ادارے ہیں ہمارے جو ہم دے رہے ہیں, لسٹ ان شاء اللہ پرووائڈ کریں. باقی جو اس کے علاوہ ہم کوشش کریں کہ نان لائسنسی کی بھی ہمیں کو مل جائے. روز کوئی نہ آفس سراؤنڈنگ میں ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ میرے خیال سے 200-250 اس وقت بھی بغیر لائسنس کے بغیر بیٹھا ہوا. جو لائسنس لینا چاہتے ہیں ان کو خود ہمارے ایسوسیشن پریشر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اور خود ٹورزم سے ہماری کوآرڈینیشن ہے, ہم ان کو فرسٹ کم فرسٹ پراورٹی پہ کرواتے ہیں. یہ ساری سر چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, چھوٹے چھوٹے پوائنٹ. سب سے پہلے ضروری سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کمیٹی بنائی جائے, سارے معاملات انشاءاللہ اس کی طرح ہوں گے. ہمیں بڑی اچھی اور آسانی سے آپ کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائے گا, ہمیں بھی اپنے مسائل ڈسکس کرنے میں آسانی. چیمبر کو بھی ساتھ دیا جائے, آپ ہو ہماری ایسوسیشن کو جو سیشن جو ممبر ہیں جو سینئر ہیں پریزیڈنٹ صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ان کا کوآرڈینیشن سے ہم لوگ ہاتھ کریں اور اس کی انشاءاللہ بڑا اچھا ٹھیک ہو گیا نا. تھینک یو سو مچ. بڑی دیر بعد صاحب کا اگر بھی آج میں اچھا پیپر سے نظر آئے تو آپ کم از کم ان ساتھیوں کو آج یہ تاکہ ان کے زخموں کو نہ رکھا جائے. اور میں صاحب کو متعلق یہ کیا کرتا تھا اور ان کے منہ پہ کیا کرتا تھا. پہلی میٹنگ میں صاحب سے ملا تو میں نے کہا سر سب نے آپ کی تعریف کی ہے, نام میں آج مبارکباد دینے کا تعریف میں سر یہ کہ آپ سب ساتھی بتا رہے کہ آپ اقتدار کے کام میں اس کے بعد یہ ساتھ لگایا کہ آپ اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد. فرسٹ میٹنگ میں کہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو سرکار خیمہ صاحب لوگ یہاں موجود ہیں ان کی جھلک مجھے آپ نظر آئی ہے, تو خارا وہ جو جھلک ہے نا عملی طور پر بھی نظر آئے. شاہد مجید صاحب اس کو ہماری طرف سے کمیٹی ہیڈ کریں گے, آپ اپنی طرف سے نومینیٹ کر دیں. وہ رانا اختر صاحب ہے وہ مل کے بنا رہے ہیں. دوسرا میں آصف ربانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ورڈ آف تھینکس بولیں سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسٹر پریزیڈنٹ. ابھی تو مجھے بھی سوال تھے تو میرا خیال ہے تھوڑے سے سوال بھی کر لوں پھر ورڈ آف تھینکس بھی کرتا ہوں. سب سے پہلے جی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مخدوم کیسر صاحب جب یہاں پر چیف ٹریفک آفیسر تھے انہوں نے صرف سگنل کا بتایا. انہوں نے ڈی سی او صاحب کے ساتھ مل کے جو ہمارے گجرانوالہ میں چند پیڈسٹرین نظر آ رہے ہیں نا وہ بھی انہی کی کاوش تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ انہوں نے وزیر آباد نوشہرہ ورکا کے اندر جو سنا لرننگ ان کے جو سی نا موبائل وین بھی بنوائی. اس کے ساتھ جی ٹی روڈ کے اوپر ہم کیمپ لگاتے رہے, لرنر کو پروموٹ کیا تھا, تو یہ بھی انہی کی کاوش ہے. اس کے ساتھ ساتھ وارڈنس کو مطلب دھوپ میں جو کھڑے ہوتے تھے ان کو امبریلاز بھی انہوں نے تقسیم کی, ان کو کرسیاں بھی دی, ان کو بعض کا ہم کھانا بھی ان کے ساتھ مل کے ہماری جو ٹریفک کمیٹی تھی پہنچاتی تھی. اور یہ سارا کام ان کا انٹرسٹ تھا گجرانوالہ کی ٹریفک کے لیے. اور یہ ایسے آفیسر تھے کہ ان کو جب بھی کسی چیز کی کمپلینٹ کرتے تھے نا تو یہ اپنی گاڑی چھوڑ کر ہمارے کسی ممبر کی گاڑی میں بیٹھ کے کہتے تھے بتائیں کہاں پہ کوئی معاملہ ہے, کہاں پہ کوئی ٹریفک ہے, ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنے اچھے آفیسر ہمیں گجرانوالہ میں ملے ہیں. یہ اجمل وان صاحب نے ٹھیک آگے بہت دیر کے بعد ہمیں کوئی آفیسر ملا ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس دن میں مبارکباد کے لیے ان کے آفس گیا تو انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا اور انہوں نے خود کہا کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں آپ اپنے ممبران کو بلائیں تاکہ ہم ایف آئی اے کی ایک جو سی نا پریزنٹیشن دیں کہ ہماری ڈومین میں کیا کیا آتا ہے. تو وہ جب آج ہم نے پریزنٹیشن جب سنی ہے تو پتہ چلا کہ کیا کیا چیزیں ان کی ڈومین میں آ رہی ہیں وہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ابھی ایک دو چیز جب پریزنٹیشن میں نے سنی کہ کارپوریٹ کرائم کا ابھی ڈی جی صاحب نے ایک ورڈ بولا ہے جو سوئی گیس پی ٹی سی ایل اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آیا تھا. کیا جو ڈومیسٹک کرائم بھی آتے ہیں وہ بھی آپ ڈیل کریں گے کہ صرف کارپوریٹ کے سیکٹر کو ہی آپ ڈیل کریں گے؟ ایک تو میں چیز یہ تھی ڈومیسٹک سے مراد جو گھروں کے چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں, کارپوریٹ میں تو بڑی آ جاتی ہے نا انڈسٹری کی. تو اس میں
अच्छा, उसमें ये था कि कुछ हमने ये भी सुना था एंटी करप्शन भी उसको देख लिया, और एंटी करप्शन और FIA के जो आपस में कोई डोमेन है। एंटी करप्शन जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है उसको देखिए, सूबाई डिपार्टमेंट। ठीक। आपका गैपको, आपका सुई गैस, आपका PDCL, आपके NHA, PIA, यूटिलिटी स्टोर, PWD, तो फेडरल का डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल का डिपार्टमेंट एंटी करप्शन देती है फेडरल के डिपार्टमेंट को। इसके अलावा हमारे गुजरांवाला में जो हमें जो प्रॉब्लम आती है ना, TT हमारी हैक हो जाती है, उसके मतलब भी हमारे जो इश्यूज होते हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बाद में हम उस पर बैठ के बात करेंगे। दूसरी ये बात थी कि जो एयरपोर्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मेरा फ्रेश पासपोर्ट था जो नया बना, तो वीज़ा था मेरा, तो मैं बाहर जाने लगा तो सियालकोट एयरपोर्ट पे जब मैं एंटर होने लगा तो मेरा वीज़ा और मुझे देख के कहता है वीज़ा कितों लवाए। मैं कहा तेरा की मतलब है वीज़ा कितों लवाए? कहता है कि एजेंट को लवाया। मैं कहा मैं तुम एजेंट वाला बंदा लगना वीज़ा एजेंट से लवाया। खैर 5-7 मिनट उसने मेरी तफ्तीश की तो फिर हम मुझे जाने दिया। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं कि वो वाकई बड़े एम्बैरसिंग है हमारे लिए कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसको भी इनकी कमेटी के साथ मिलकर ज़रा देख लीजिएगा। तो अभी मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमानान का, स्पेशली जो हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजमल वान साहब तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, और इनके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए हमारे